Okay, so is my presentation visible and my audio clear? If yes, kindly put it in the chat message. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so for people having connectivity issue, they may not be able to properly listen to the audio. So go to a place where there is good internet connection. Then you will be able to listen to us. So what are we going to see in today's webinar? Uh, why NDLI? Who is this for? What kind of content we have at NDLI? How to access NDLI? What is the difference between Google and NDLI? And how to operate NDLI Cloud. So these are the 6 areas that we are going to look at in today's webinar. So before we begin the session, uh, so kindly have a look at this map of India, which depicts the literacy level of this country. So except very few states like Goa, Kerala, Tripura, and Mizoram, where the literacy level is above 90%, majority of the states, the literacy level is less than 75%. So this is one statistics. On the other hand, we have another statistics which says every month, uh, every month, at least 1 million people, that is 10 lakh people, are attaining the age of 18. So that means they are getting into the higher educational stream. So if India has to address this higher educational requirement, the country has to set up 6 universities and 270 colleges every month to address this educational divide. And setting up these infrastructures are requires human financial resources. But apart from these, it's also most challenging when you have to sustain these institutions. So because many of the institutions which we have seen in this country already are struggling to get admissions. So on the it's a kind of a paradox. On the one hand, we have the requirement. On the other hand, we don't have admission. So we need to address this gap. So the government of India looked at alternate solutions to address this educational divide. So they looked at various digital solutions like NPTEL, uh, Swayam Prabha, Gyan, NDLI. All these are supplementary and complementary learning resource tools that the government has come up with. And then if you look at why NDLI, when NDLI was launched, it was primarily launched as a pilot program way back in 2015 and 16. And so there was a rationale to it. The rationale was in majority of the educational institutions, especially in the last few years, the budget, the financial resources, and the human resources for the libraries have been drastically reduced. So the institutions have their own reasons for reducing the budget, but if you reduce the budget for libraries and also the human resources, it means the access to quality knowledge resources or the procurement of knowledge resources are going to be limited, which means you're going to give less number of resources to your students and faculty members, and which will in turn result into uh, less uh, learning outcomes, reduction in the learning outcomes. So it's all interlinked. So that's one aspect. Apart from this, you have also seen in the physical libraries. In the physical libraries, you have challenges of physic infrastructure. Say, for example, many of the institutions we have seen, they don't have additional requirement, additional physical infrastructure, so that they can stack the resources which they procure, and also they don't have proper weed out mechanism. So they all find it difficult to host the resources. So in fact, in few of the institutions where I have visited, the resources which they have procured or were lying on the corridors of the library without even being unopened.
So that's the situation. And also we have in the physical libraries, like in this time of lockdown, the world's best libraries are also closed. They don't have uh, proper like access mechanism, including the Oxford University Library. They are all closed now. Apart from this, you have challenges like less number of resources, but more people wanting to access it. Say, for example, if there is a good resource, at least some 10-15 people might want to access it at the simultaneously. But in the physical library, you have a limitation of giving it to as many number of copies you have. So that's another challenge. Apart from this, you have challenges like missing resources, hidden resources, and damaged resources. So these are challenges that the country has been witnessing. These challenges are not just only in India; it's also outside India as well. And also, so the government of India looked at all these challenges and they thought they should address the challenge by democratizing education. So they looked at giving quality knowledge resources to every Indian citizen through NDLA. So that is when NDLA came into existence, and the NDLA was dedicated to the nation as a national knowledge asset on the 19 June 2018 by the then MHRD minister. Now we will look at what we actually have at NDLA. At NDLA, at NDLA platform, we primarily have metadata. What is metadata? Metadata is, in technical terms, it's data about data, or in this context we can put it as basic information about a resource. What are the resources? Resources could be a book or an article or a video lecture or an audio lecture or a PowerPoint presentation or a question bank. It could be any resource. So basically at NDLA we only store the metadata, the basic information about that resource, and we don't store any full text resources. So then you may ask me like how you give access to like so much of resources, full text resources. So I'm just going to you can look at this diagram wherein, so imagine this is the central of this icon. This is the NDLA platform, NDLA portal. So what we first primarily do is, say for example, if Punjab University wants to contribute. So Punjab University has digitized some 1,000 non-copyrighted open source resources, which they want to share it with every Indian citizen. So what we do is we first sign an MOU or an agreement or a collaborative arrangement with Punjab University, and then we help them in designing a institutional digital repository. Okay, and also we give them a metadata schema in which those 1,000 non-copyrighted open Hello, hello. non-copyrighted open source resources have to be that metadata has to be uploaded. So once they create the institutional digital repository with the required metadata fields, then we only pull the metadata from the Punjab University's IDR to NDLI's platform. Okay, now what we have is only the metadata of Punjab University. Suppose if a researcher from Delhi wants to access a research paper on Punjabi literature, so he comes to NDLI, he searches on NDLI about the topic. Good morning, all. Suppose if the resource, is from Punjab University, we redirect that researcher to Punjab University's IDR. So Punjab University's IDR verifies whether this person is authenticated by NDLA. If it's authenticated, then it redirects to it gives the complete paper to the researcher. Okay, so this is how NDLA operates. So as I mentioned, we don't create any content, we don't digitize content, or we don't produce papers, or we don't write books. Basically we act as a content integrating platform. We give our platform for everyone to share their
resources, which are non-copyrighted and open, free and open resources. So far we have 293 such content contributors. And then what type of content we have at ADLI? Computer science, information and general works, we have around 1 crore resources. Philosophy and psychology, 5.42 lakh resources. Religion, 2 lakh resources. Social sciences, 45 lakh resources. Language, 1 lakh resources. Natural sciences and mathematics, 84 lakh resources. Technology, again 1 crore resources. The arts, fine and decorative arts, 4.5 lakh resources. Literature and rhetoric, 7.8 lakh resources. History and geography, 6.1 lakh resources. So if you add them, we have 4.85 crore resources as of today. So who are these top 20 content contributors? So World eBook Library contributed about 77 lakh resources, followed by CiteSeerX, PubMed Central, IEEE, Springer Link, Semantic Scholar. So these are, say for example, IEEE and Springer Link, we only have the metadata. Kindly mute your mic, please. So we only have metadata. We don't have full text resources, especially for IEEE and Springer. ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ So we have a range of content. So starting from faculty publications, thesis, dissertation, research projects, books, periodicals, open access journals, e-books, annual reports, project reports, lecture slides, video lectures, audio lectures, class notes, courseware, term papers, assignments, assessments, solutions, question bank, data sets, benchmarks, models, maps, manuscripts. So you name any form of educational and research resources, they are all available at NDLI. And like resource type, if you look at it, articles are the highest type of resources. We have 3 crore resources are articles, followed by books, which are 64 lakh resources. So as I mentioned earlier, kindly listen to the presentation, because the questions will be for the quiz come feedback form. The questions will be taken from this presentation only. Say for example, we have 5 different types of access options available at NDLI. The first one is open. So this is the open access resource, which means you have the full text access to the full text resources. And then NDL resources, this also gives the full text access. So you can see the left side icon, what are the kind of access icons you can see. And the third one is limited access. Say for example, if suppose if it's a 30-page article, out of which only 15-page articles are like readable, and the remaining 15-page may be hidden. So this is the limited access. And the fourth one is subscribed access. So for example, IEEE and Springer, we only have the metadata. We don't have the full text resources. So we don't have the full text resources. Say for example, if your institution has subscribed to IEEE or Springer, then it will allow you to get the full text resources. And the fifth one is restricted access. Say for example, IIT Jodhpur, all their faculty notes and all, they are all restricted only to the internal consumption, not for any external use. So these are the 5 different type of access options that are available: open, NDL users, limited access, subscribed, and restricted. And how can you find the resources, whether it's from where you can find the access option? So you can here see there is this green lock with open, and similarly at the third one you can see a red lock with closed. So this denotes, the first icon of below every article denotes the access options. Now let's see access right wise, access option wise content. So open resources are about 2.75 crore resources, and NDLI resources are 77 lakh resources. So if you add both of them, it will be around 3.62 crore resources. That means 75% of our resources are full text resources. You can download
and use it for educational purposes without having to pay a single penny for these resources. Who is this for? NDLI's resources are meant for every age group, starting from the school going children to college going youths, professionals who are working, academicians, researchers, entrepreneurs, lifelong learners. So we have resources for every age group. Now I'm going to show you how to access National Digital Library. So अभी हम देखते हैं कैसे NDLI को एक्सेस करना है. सो आप गूगल में जाइए, नहीं तो कोई भी सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, आपको पहला URL आएगा ndl.iitkgp.ac.in. ये पहला URL है, इस पे आपको दबाना है. पहले आप सोचें, इस पे दबाएंगे, फिर आपको होम पेज तक देखी जाएगा, NDLI का होम पेज में ले जाएगा. सो यही हमारा NDLI का होम पेज है. ये सेंटर वाला है, ये सेंटर, ये बॉक्स है, यही सर्च बॉक्स है. सो इधर ही आपको सर्च करना पड़ेगा. सो इधर आप जाके कोई भी आपको उस टॉपिक के बारे में रिसोर्स चाहिए, बुक्स और आर्टिकल्स चाहिए, इधर जाके उस टॉपिक को एंटर करेंगे, फिर इधर सर्च मारेंगे, फिर आपको डिस्प्ले आ जाएगा. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. उसके अलावा आपको होम पेज में ये सारी चीज़ दिखेंगे. एक स्टडी एट होम आप इधर देख सकते हैं. स्कूल के लिए अलग से कंटेंट बनाया है, और इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, लिटरेचर के लिए, मैनेजमेंट और लॉ के लिए अलग अलग रिसोर्स टाइप्स कंटेंट को क्लासिफाई करके रखे हुए हैं. और कोविड-19 रिसर्च रिपोजिटरी भी अवेलेबल है. स्कॉलरली पब्लिकेशंस, डेटा सेट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस के कोविड-19 के ऊपर वेरियस रिसर्च रिपोजिटरी भी अवेलेबल है. So for people, so I just want to pass here. So if you are not serious about attending this webinar, you can leave, because I don't want the chat window to be used for discussing your personal things. So kindly request Mr. Ranjot Singh, Jaspreet Singh, Baljinder, Dalip Kumar, Rajvinder Singh. So suppose आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लीव, यू कैन मीटिंग पे एक बटन है लीव मीटिंग करके, उसको दबा के आप बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सो नाउ सो पहला मैंने टॉपिक सर्च किया था पंजाबी लिटरेचर के ऊपर. सो उसको सर्च करने के बाद, और मुझे चाहिए लैंग्वेज पंजाबी में ही चाहिए. सो मैंने क्या किया था, पंजाबी लिटरेचर टाइप करके इधर सर्च का आइकन है, वहाँ सर्च में दबाया. फिर मुझे लेफ्ट साइड में कुछ 10 फिल्टर्स हैं और राइट साइड में एक फिल्टर है. सो लेफ्ट साइड में एक फिल्टर है लैंग्वेज, वहाँ जाके पंजाबी मैंने चूज़ किया. मुझे 594 रिजल्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ पंजाबी लिटरेचर में, पंजाबी लैंग्वेज में मिला है. ठीक है. और उसके अलावा आप पूरा इंटरफेस को अपने लैंग्वेज में भी, इंडियन लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं. इधर जाके आप लैंग्वेज में दबाएंगे, फिर आपको कितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस पे अवेलेबल हैं वहाँ पे आ जाए. सो उस पर आप चूज़ करके अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं. पंजाबी में भी अवेलेबल है. और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर. इधर मैंने सब्जेक्ट कैटेगरी में जाके, एक फिल्टर है सब्जेक्ट कैटेगरी करके, वहाँ जाके लैंग्वेज और लिटरेचर और रिटोरिक मैंने चूज़ किया. 6.74 लाख रिसोर्सेज इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर आया है. Just give me a few minutes.
सो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था मॉडर्न इंडिया के ऊपर, और सब्जेक्ट कैटेगरी लगाया हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सो इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक्सेस रेस्ट्रिक्शन करके एक फिल्टर है, ऑथर करके एक फिल्टर है, सब्जेक्ट कैटेगरी करके एक फिल्टर है, एजुकेशनल डिग्री, डिफिकल्टी लेवल, एजुकेशनल लेवल, फाइल फॉर्मेट, लैंग्वेज, लर्निंग रिसोर्स टाइप और सोर्स। ये 10 फिल्टर्स हैं। इसको यूज़ करके आप अपने सर्च को और नैरो डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, और मुझे चाहिए था सिर्फ वीडियो लेक्चर्स। सो मैंने क्या किया था, बायोटेक्नोलॉजी सर्च करके राइट साइड में कंटेंट टाइप करके एक फिल्टर है, वहाँ वीडियो में दबाया, मुझे 1878 video lectures on the topic of बायोटेक्नोलॉजी अलो। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था फिनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, और अगेन मुझे सिर्फ चाहिए वीडियो लेक्चर। सो कंटेंट टाइप में जाके वीडियो में दबाया, मुझे 1700 के आसपास वीडियो लेक्चर्स ऑन फिनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा और कैलकुलस, और इस बार मुझे चाहिए कंटेंट ओनली फ्रॉम खान अकेडमी। सो मैंने क्या किया था, सोर्स में जाके खान अकेडमी करके सर्च करके खान अकेडमी से कंटेंट चूज़ किया, मुझे मिल गया 10,000 के आसपास रिजल्ट्स ऑन दिस टॉपिक ऑफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, और सपोज मुझे चाहिए सिर्फ थीसिस, PhD थीसिस अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो मैंने क्या किया था, फिजिकल एजुकेशन सर्च करके इधर सोर्स करके एक फिल्टर है, वहाँ इनफ्लिबनेट शोध गंगा चूज किया। शोध गंगा एक थीसिस का, इंडियन थीसिस का रिपोजिटरी है। सो 2779 thesis available on this topic of physical education alone। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने सर्च किया था ऑन दिस जावा प्रोग्रामिंग, और मुझे चाहिए सिर्फ NPTEL का लेक्चर्स। और मुझे मिल गया 20 वीडियो लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग अलोन। सो मैंने आपको पहले ही बताया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन के समय पे एक्चुअली हमारे टीम ने बैठ के हमारे कितने भी 4.5 करोड़ के आसपास रिसोर्सेज हैं, सबको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया। स्कूल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, लॉ, और उसके अलावा एक CBSE एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए अभी एक अलग से टैब बनाए थे। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपको स्कूल एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट चाहिए, सो आप स्कूल में दबाएंगे, फिर आपको स्कूल रिलेटेड कितने भी कंटेंट्स हैं वो मिल जाएगा। सपोज आपने ह्यूमैनिटीज़ में चूज़ किया, फिर आपको ह्यूमैनिटीज़ से कितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिलोसफी, और भी है नीचे, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सो रिलेवेंट सब्जेक्ट कैटेगरी को आप चूज़ करके आप अपना रिलेवेंट कंटेंट को देख सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे NDLA में कंटेंट को खोल के यूज़ करना है। सो मैंने एक टॉपिक सर्च किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, और मुझे कंटेंट चाहिए सिर्फ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। सो मैंने सोर्स में जाके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चूज़ किया, मुझे मिल गया 1438 रिसर्च। सपोज मुझे ये पहला वाला रिसोर्स डाउनलोड करना है, फिर मुझे क्या करना है, इसमें जाके एक बार दबाना है। सो
क्लिक करने के बाद ऐसे ही एक पेज आएगा। सो ये ऊपर दो टैब्स हैं, कंटेंट और मेटा डेटा। सो आप पहले आपको मेटा डेटा में दबाना है। मेटा डेटा यही मेटा डेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसोर्स। सो इस रिसोर्स का टाइटल रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सोर्स एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कंटेंट टाइप टेक्स्ट, पब्लिशर एक्सेल बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ, लैंग्वेज इंग्लिश, सब्जेक्ट डोमेन किसके सब्जेक्ट में। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सपोज आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके बेसिस पे आप सोच रहे हो ये आपको यूजफुल रहेगा, फिर आपको ये चीज़ देखना है, ये कंटेंट फुल टेक्स्ट है कि नहीं। सो फुल टेक्स्ट एक्सेस करने के लिए आपको दो चीज़ देखना है, एक ओपन और एक एनडीएल है। ये दोनों आपको पूरा कंटेंट को आपको डाउनलोड करके आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये ओपन रिसोर्स है। और तीसरा आपको देखना है राइट टॉप कॉर्नर में यूज़र आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है कि नहीं। तो इधर आप देख सकते हो मेरे नाम पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूँ। सपोज मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, फिर मैं डाउनलोड करना है, इधर जाके कंटेंट पे क्लिक करूँगा, फिर आपको सारा कंटेंट 338 पेज का कंटेंट है, सारा डाउनलोड करके अपना लैपटॉप, सिस्टम, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड होकर आ जाएगा। सो इसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो विदाउट हैविंग टू पे अ सिंगल पेनी। सो इमेजिन कीजिए सपोज आपने लॉगिन नहीं किया, पहली बार आप यूज़ कर रहे हो। सो उस समय आप कंटेंट पे दबाओगे, आपको वैसे ही एक पेज में लेके जाएगा। सो इधर आपको कहेगा प्लीज़ लॉग इन टू व्यू दिस कंटेंट करके। सो उस समय आपको क्या करना है, लॉगिन पे दबाना है। दबाने के बाद आपको वैसे ही एक पॉपअप विंडो आएगा। सो इधर सपोज आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड याद है, आप इधर जाके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और कैप्चा एंटर करके लॉगिन करेंगे, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो सपोज़ आपने कुछ 6 महीने पहले आपने रजिस्टर किया, लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए। सो इस केस पे आप क्या करना है, अकाउंट रिकवरी करके एक ऑप्शन है, सो उस पर दबाएंगे, फिर आपको वैसे ही एक पॉपअप विंडो मिल जाएगा। सो इधर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करके सबमिट करना है, फिर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। ईमेल पे आपको सारा प्रोसेस सब कुछ एक्सप्लेन करके आएंगे, उस पर आप सर्च कर डाउनलोड उसको मेल पे पूरा प्रोसेस लिख के आएगा, उसको फॉलो करके आप अपने पासवर्ड रीसेट करके इसको यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपने कभी एनडीएलए के बारे में सुना नहीं है, ये पहली बार आप सुन रहे हैं। सो उस केस पे आप एनडीएलए पे रजिस्टर करना है, फर्स्ट टाइम एक ही बार रजिस्टर करना है। इस पर रजिस्टर पे दबाएंगे, आपको राइट हैंड साइड पे इधर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इधर आपको पूरा नाम लिखना है, आपका पर्सनल ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये 4 डिटेल्स है मैंडेटरी। ओके, ये सारा भर के फिर आप बेसिक डिटेल्स आप भर के आप सबमिट कर देंगे, फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। सो उस पर एक यूआरएल आएगा, उस पर आप दबाएंगे, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके आप पढ़ सकते हो। यही आपको वीडियो लेक्चर है, वैसे ही एक फ्रेम के अंदर आपको दिखेगा। सो एनडीएलए यूज करने के लिए आपको दो चीज याद रखना है। पहला आपका सर्च कीवर्ड, सही सर्च कीवर्ड होना चाहिए और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक होना चाहिए। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको वेरियस फिल्टर ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सो अभी मैं आपको कुछ 8 इंपॉर्टेंट फिल्टर ऑप्शंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सो पहला फिल्टर ऑप्शन है एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। सपोज आपको सिर्फ चाहिए फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज, सो फिर आपको क्या करना है, ओपन और एनडीएलए पे चूज करेंगे, फिर आपको सिर्फ फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज मिलेंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट फिल्टर है ऑथर। सपोज आपको रिसर्च चाहिए ओनली फ्रॉम वोइजैंग, सो आप वोइजैंग में जाके चूज करेंगे, आपको ऑथर के हिसाब से कंटेंट मिल जाएगा। और तीसरा है सब्जेक्ट कैटेगरी। सो आपको सब सर्च कीवर्ड के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट कैटेगरी चूज करना है। सपोज आपने से जावा प्रोग्रामिंग के बारे में सर्च किया, फिर आप
टेक्नोलॉजी में भी चूज कर सकते हो और कंप्यूटर साइंस में भी चूज कर सकते हो. सो डिपेंडिंग ऑन द सर्च कीवर्ड आपको सब्जेक्ट कैटेगरी आ जाएगा. और फोर्थ फिल्टर है फाइल फॉर्मेट. सपोज आपको चाहिए सिर्फ पीडीएफ फाइल्स, तो इधर जाके आप फिल्टर आप पीडीएफ में चूज करेंगे, फिर सिर्फ पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे. सिमिलरली MP3 फाइल्स चाहिए, MP3 में दबाइए, MP4 है तो MP4 में चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द रिलेवेंट फिल्टर फाइल फॉर्मेट यू कैन चूज. और फिफ्थ फिल्टर ऑप्शन है लैंग्वेज. सो NDLM में कंटेंट्स लगभग 300 लैंग्वेज में अवेलेबल है. ओके, बोथ इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेज में अवेलेबल है. तो आप अपने लैंग्वेज का भी, पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लैंग्वेज में भी आपका कंटेंट अवेलेबल है, उसको भी आप पढ़ सकते हो. और सिक्स्थ फिल्टर ऑप्शन है लर्निंग रिसोर्स टाइप. सपोज आपको चाहिए सिर्फ ऑडियो बुक, तो आप ऑडियो बुक चूज कर लीजिए. सिर्फ चाहिए न्यूज़पेपर, इधर जाके न्यूज़पेपर पे दबाइए. एंड द सेवंथ फिल्टर ऑप्शन इज सोर्स. सो मैंने आपको पहले बताया लगभग 293 कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है. वो सारा 293 कंटेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, इधर लिस्टेड है. सो आप डिपेंडिंग ऑन द किससे आपको कंटेंट चाहिए उसमें आप चूज करेंगे. Okay, so there are a lot of disturbance. और ये फिल्टर ऑप्शन है कंटेंट टाइप. सो ये फिल्टर ऑप्शन आपको सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन में दिखेगा. ये आपको राइट हैंड साइड पे, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में राइट हैंड साइड पे दिखेगा. डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट टाइप, आपको सपोज वीडियो लेक्चर चाहिए, वीडियो पे दबाइए. सो आपको पहले ही मैंने बताया NDLI का इंटरफेस आप अपने वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में भी आप देख सकते हो. सो अभी अवेलेबल है बांग्ला, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा, उड़िया, तमिल, पंजाबी, असमीज और मलयालम में भी अवेलेबल है. और NDLI का कंटेंट है मोबाइल ऐप से भी अवेलेबल है. बोथ एंड्रॉयड एज वेल एज iOS दोनों में भी अवेलेबल है. आप आईफोन यूज़ करते हैं, आप आई स्टोर में जाके ऐप के बारे में आप सर्च करेंगे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया सर्च करेंगे, आपको मोस्ट लाइकली फर्स्ट ऐप आएगा. सो आप इधर देख सकते हैं आइकॉन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का आइकॉन आएगा और ऐप का नाम आएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और पब्लिशर आएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. ये तीनों चीज़ सही है, फिर आप इसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो. सिमिलरली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आप प्ले स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, पूरा नाम आपको डालना है. NDLI सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा नाम डालने के बाद ये तीन चीज़ आप सर्च करके इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं. सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ NDLI का मोबाइल ऐप कैसे यूज़ करना है एंड्रॉयड में. सो इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप को खोलेंगे, फिर आपको यही हमारा होम पेज है. ओके, क्लिक करने के बाद ये होम पेज ऐप का होम पेज है. सो सब्जेक्ट डोमेन दिखेगा, लर्निंग रिसोर्स टाइप दिखेगा, फीचर रिसोर्सेस दिखेगा. इधर आपको सर्च करने के लिए, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आपको सेंटर पे और टॉप सेंटर पे आपको एक सर्च बॉक्स अलग से दिखेगा, लेकिन मोबाइल ऐप में सर्च बॉक्स खोलने के लिए आपको टॉप में इधर एक सर्च आइकॉन है, उस पर दबाएंगे, फिर आपको ये सर्च बॉक्स खुल जाएगा. सो इधर जाके आप अपना कोई भी सर्च टॉपिक हो उस पर आप एंटर करेंगे. सो इधर मैंने सर्च किया था उत्तर प्रदेश के ऊपर. सो उत्तर प्रदेश क्लिक करके फिर अपने कीपैड पे सर्च पे दबाएंगे, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेगा. इधर मुझे मिल गया 41,573 रिजल्ट्स. सपोज मुझे इसको फिल्टर करना है. फिल्टर करने के लिए इधर एक ऑप्शन है, ऑरेंज कलर आइकॉन है राइट बॉटम कॉर्नर पे,
सो इस पे दबाएंगे, फिर आपको कितने भी हमने फिल्टर ऑप्शंस वहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में देखा, वो सब ऊपर लिस्टिंग होना शुरू हो जाएंगे। ओके, इधर आप देख सकते हैं एक्सेस रिस्ट्रिक्शन सोर्स। सो मैंने क्या किया था, इधर एक सोर्स करके फिल्टर है, सो उस पर जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ करके अप्लाई कर दिया। मुझे मिल गया है 199 रिजल्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो NDLI का मोबाइल ऐप को कैसे यूज़ करना है। सो अभी हम एक अब इस एक्टिविटी करने का आपके पास 5 मिनट का टाइम है। सो आपको क्या करना है, आपको NDLI मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर, आईफोन यूज़ करते हैं तो आई स्टोर में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। ये फर्स्ट एक्टिविटी है। सपोज आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो अच्छा है, डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा टास्क है, आप अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सपोज आप एथिकल हैकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, फिर आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हो। सपोज आप फिजिकल एजुकेशन के बारे में सर्च करना चाहते हो, फिजिकल एजुकेशन और कोई भी टॉपिक आपके बारे में आप सर्च करना चाहते हो, NDLI मोबाइल ऐप खोल के वहाँ पे टॉप कॉर्नर में मैंने आपको पहले बताया ये वाला सर्च आइकन है, उस पर दबा के फिर सर्च बॉक्स में आप कोई भी टॉपिक आपका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हो, आपका इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक को सर्च करके मुझे बताना है कितने रिसोर्सेस मिला है और वो यूजफुल है कि नहीं। ओके, सो इस टास्क करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। सो अभी मेरे सिस्टम पे 6:38 हो रहा है, 6:39 है, 6:44 तक हम वापस सेशन को, प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे। सो इस 6 मिनट 5 मिनट के अंदर आप ये दोनों एक्टिविटी, पहला आप ऐप को NDLI मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करना है, और दूसरा आपके कोई भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसको सर्च करके आप मुझे चैट मैसेज पे डालना है। यू इंस्टॉल द ऐप वेदर विच टॉपिक यू सर्च, सपोज आपने एथिकल हैकिंग के बारे में सर्च किया, एथिकल हैकिंग सर्च किया और कितने रिजल्ट्स मिले और आपको यूजफुल रहेगा कि नहीं। सो ये तीनों आप लिख के मुझे चैट विंडो पे भेजिएगा और आपका 5 मिनट शुरू होता है। आप हेलो। मेरा फोन दे जाके दूजा।
Kindly mute your mic. हेलो। हाँ जी, बताइए। Okay, so the people who have started using it searched on computers, history of English literature, modern algebra, Naiya Sharma, unable to find topic of management. मैनेजमेंट के ऊपर तो आपको होम पेज पे आपको मिल जाएगा. We got 26 on cybercrime, Ambika Chima, Kujit conceptual history, cultural history, search for Olympic games and got 11,350 results. Okay. And Mr. Prabneet Kaur searched on feminine criticism, found 4,745 results. History. Okay. हेलो सर। हेलो। आप चैट पे मैसेज डालेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड पे काफ़ी डिस्टरबेंस है. आप चैट पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा. ओके. सो काफ़ी सारे लोगों ने फिजियोलॉजी के ऊपर सर्च किया है. ओलंपिक गेम्स, साइकोलॉजी, इंटीजर प्रोग्रामिंग, यूएल हरारी, लीनियर प्रोग्रामिंग, लाइब्रेरी साइंस, commercial law, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. सो आपने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर सर्च किया. सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है टू एवरीवन, आपको ये ऐप यूज़फुल लगता है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप you are free to use because there is you don't have to pay a single penny for registration or using the resources. Or the best thing you can do is you have to share it with your friends, family members, relatives, your own students or your own colleagues. So that is the best service that you can do. So kindly share it with your friends, relatives. That would be a useful service for this nation. So now we will come back to the presentation. So is the presentation visible now? हेलो। So कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट विंडो पे डालिएगा. काइंडली डू नॉट स्पीक इन द माइक. ओके. सो नाउ वी विल बिगिन. सो अभी हम देखते हैं गूगल और एनडीएलए का क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो इमेजिन कीजिए एक लड़की है पायल, वो 8वीं पढ़ रही है और उसका मीडियम है, स्टडी मीडियम है हिंदी. सो वो जानना चाहती है क्लास 8 का मैग्नेटिज्म टॉपिक, फिजिक्स सब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहती है. और एक लड़का है शमीक, वो पीएचडी करना चाहता है ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म. सो बोथ ऑफ देम हैव गॉन टू गूगल और इन्होंने सर्च किया था मैग्नेटिज्म के ऊपर. दोनों को सेम रिजल्ट्स 1.89 करोड़ रिजल्ट्स मिला है. फिर दोनों ने एनडीएलए पे आए, सेम टॉपिक सर्च किए थे मैग्नेटिज्म के ऊपर, उनको मिला है 11 लाख के आसपास रिजल्ट्स. सो अभी पायल ने क्या किया, 2 फिल्टर्स अप्लाई की. पहला एक फिल्टर की थी एजुकेशनल लेवल. सो वहाँ जाके उसने चूज़ किया 5th to 8th स्टैंडर्ड का, और इसने लैंग्वेज पे चूज़ किया हिंदी. सो इसको मिल गया सिर्फ 8 रिजल्ट्स. और शमीक ने क्या किया है, उसको चाहिए सिर्फ करियर एंड टेक्निकल पेपर्स, उसको मिल गया 219 रिजल्ट्स. सो आप इमेजिन कर सकते हो
कहाँ पे 1.89 करोड़ रिजल्ट्स और कहाँ पे 8 और 219 रिजल्ट्स. सो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड इंडियल. सो वो जानने के पहले हमें देखना है गूगल कैसे काम करता है. सो सपोज आप एक द मोमेंट आप मैग्नेटिज्म करके एक टॉपिक डाला गूगल पे, वो क्या करता है पूरा दुनिया में कहीं पे भी ये मैग्नेटिज्म टॉपिक है, कंटेंट है, उसको सर्च करके वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी होगा उसको सर्च करके हमारे सामने लेके आ जाएगा. ठीक है. सो इस प्रोसेस में गूगल ये नहीं करता है, वो नहीं देखता है ये ऑथेंटिक सोर्स है कि अनऑथेंटिक सोर्स, और ये रियल इन्फॉर्मेशन है कि फेक इन्फॉर्मेशन, और ये शमिक और पायल के लिए रिलेवेंट रहेगा कि नहीं, और ये एजुकेशनल कंटेंट है कि नॉन एजुकेशनल कंटेंट. ये सब चीज़ गूगल नहीं कर पाएगा. लेकिन एनडीएलए का कंटेंट आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, सारा कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट है. आपका सारा पार्टनर, हमारा सारा पार्टनर्स है 293 पार्टनर, सब में एजुकेशनल, रिसर्च और पब्लिशिंग इंडस्ट्री का ही है, और सबका कंटेंट क्यूरेटेड एजुकेशनल कंटेंट ओनली. ये मेजर डिफरेंस है. और दूसरा डिफरेंस है, आप एनडीएलए का कंटेंट को वेरियस फिल्टर ऑप्शंस, एजुकेशनल फिल्टर ऑप्शंस के थ्रू आप नैरो डाउन कर सकते हो. गूगल में आप एडवांस फिल्टर के यूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एजुकेशनल फिल्टर्स नहीं रहेगा, वो ओपन जेनेरिक फिल्टर्स रहेगा. सो ये दूसरा डिफरेंस है. और आप एनडीएलए में सर्च कंटेंट मॉडिफाई सर्च सकते बेस्ड ऑन कंटेंट टाइप. और फोर्थ डिफरेंस है नेशनल लाइसेंसिंग. ठीक है. ये 4 मेजर डिफरेंस है एनडीएलए और गूगल का. सो नेक्स्ट हम देखेंगे एनडीएलए क्लब को कैसे शुरू करना है अपने इंस्टीट्यूट पे. सो एनडीएलए शुरू करने का 2 ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव है आपको रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना है, वो पहला ऑब्जेक्टिव है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपको एनडीएलए रिसोर्सेज के बारे में सारे इंडियन सिटीजन्स के पास लेके जाना. ये 2 ऑब्जेक्टिव है एनडीएलए क्लब का. सो उसको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपके इंस्टीट्यूट में ये क्लब फॉर्म करना है. उसके लिए हर क्लास में से एक बच्चा और हर डिपार्टमेंट में से एक फैकल्टी मेंबर, और आपके इंस्टीट्यूट से एक लाइब्रेरियन हो और एक फैकल्टी मेंबर हो, नहीं तो एक एनएसएस कोऑर्डिनेटर को आप एक सब ऑफिशियो सेक्रेटरी बना लीजिए, और प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक सब ऑफिशियो चेयरमैन बना के उस लिस्ट को आपको आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अप्रूव करके एक एनडीएलए क्लब का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. सो इस यूआरएल पे आप दबाएंगे. सो यही हमारा एनडीएलए क्लब का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये खुल जाएगा. सो इसको आपको आपके इंस्टीट्यूशन के बेसिक डिटेल्स भरना है, फिर आपका एनडीएलए क्लब मेंबर्स का लिस्ट अपलोड करना है, और टेंटेटिव डेट किस तारीख में से आप एनडीएलए क्लब चालू करना चाहते हो उसको भी चूज़ करके फिर आप सबमिट करोगे. फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आ जाएगा. फिर हम इसको बैक एंड पे सर्च करेंगे आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे डेटाबेस के माध्यम से. फिर सपोज आपकी डेटाबेस, आपकी कॉलेज का नाम और डिटेल्स हमारे डेटाबेस के साथ मैच होता है, फिर हम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे. ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए वैलिड रहेगा. सो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 स्टेप्स आपको लेना है. पहला स्टेप, 30 दिन के अंदर आपके सारे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स को एनडीएलए के अंदर रजिस्टर करना है. और दूसरा एक्टिविटी है एटलीस्ट 10 रीडिंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटी विद इन द रिमेनिंग 11 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है. सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एनडीएलए में कैसे रजिस्टर करना है. सो एनडीएलए में रजिस्टर करने के लिए 2 तरीका है. पहला, आप एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जाके अपना इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करके एक्टिवेट कर सकता है, वो एक ऑप्शन है. और दूसरा है बल्क रजिस्ट्रेशन. बल्क रजिस्ट्रेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट रहेगा. से फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज सपोज यूजीसी, नैक, एआईसीटीई, एनबीए कोई भी वेरिफिकेशन और एक्रेडिटेशन के लिए समय पे आएंगे. सो उस समय वो पूछेंगे आप कौन सा डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करते हो, और आजकल स्पेसिफिकली एनडीएलए के बारे में भी पूछते हैं आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं कि नहीं. सपोज आप रजिस्टर्ड हैं, फिर वो आपको
पूछेंगे आप अपना इंस्टीट्यूट में से कितने बच्चे रजिस्टर किए हैं, कितने लोगों ने एक्टिवेट किया करके वो स्टैटिस्टिक्स मांगेंगे, प्लस NDLA का सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। सो ये मांगेंगे तो फिर आपको ये डेटा, सपोज आपके स्टूडेंट्स को आपने इंडिविजुअली रजिस्टर किया तो फिर ये डेटा आप नहीं दे पाएंगे। सो इसीलिए सपोज आपने बल्क रजिस्ट्रेशन के माध्यम में आपके स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को रजिस्टर किया, फिर आप ये स्टैटिस्टिक्स निकाल के दे सकते हो कितने बच्चे ने आपने रजिस्टर किया और कितने लोगों ने आपके अकाउंट एक्टिवेट करके NDLA यूज़ कर रहे हैं करके। सो फिर ये आप सबमिट करोगे, फिर आपको वो 2 और 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। सो बल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल है, 3 डिटेल्स कैप्चर करना है हर फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट से। पहला फील्ड आपका ईमेल आईडी, सारे बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स का ईमेल आईडी, प्रेफरेबली पर्सनल ईमेल आईडी ले लीजिए। और दूसरे फील्ड इनका फर्स्ट नेम और तीसरा फील्ड इनका लास्ट नेम। सो फॉर एग्जांपल इधर आप देख सकते हो, पहले मेरा ईमेल आईडी, मेरा नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये तीनों लिख के एक एक्सेल शीट में बना के हमें भेज दीजिएगा। इस आईडी पे भेजना है, ndl-support@iitkgp.ac.in, इस ईमेल आईडी पे भेजना है और मुझको एक CC में कर दीजिए ताकि मैं इसको फॉलो करके जल्दी अपलोड करवा सकूँ। सो ये आप भेजने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आप हमारे टीम ने इसको अपलोड कर दिया है करके। ओके, और वो मेल आने के बाद आप आपके सारे बच्चे और फैकल्टी मेंबर्स को एक एक डिपार्टमेंट वाइज बुला के उनको अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, आपको अकाउंट एक्टिवेट करके इनको बच्चों को कैसे यूज़ करना है करके समझाना है, वो काफ़ी बड़ा होता है, वो ही आपको करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आप NDLA का होम पेज पे जाएंगे, राइट टॉप कॉर्नर पे एक लॉगिन करके बटन आएगा। सो उस पर आप दबाएंगे, फिर आपको एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। एक मिनट, ओके। सो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्लो है। सो होम पेज में जाके राइट टॉप कॉर्नर पे आप लॉगिन पे दबाएंगे, फिर आपको ये एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे रजिस्टर का आइकॉन आएगा। सो वो रजिस्टर आइकॉन पे दबाएंगे, फिर आपको NDLA का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस पर आप फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये चारों डिटेल्स भर के बाकी डिटेल्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट वगैरह चूज़ करके फिर इसको आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट में एक ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। सो उस पर आप चूज़ करके ये में वो URL पे दबाएंगे, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और आप NDLA में वेरियस, सो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया, और आप वेरियस रीडिंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, एक लेक्चर सीरीज हो, एक क्विज कंपटीशन हो, एक स्टोरी टेलिंग सेशन हो, एक गो फिश सेशन हो, फिल्म स्क्रीनिंग, डिबेट, ड्राइंग कंपटीशन, रोल प्ले, राइटिंग कंपटीशन, मेकर स्पेस, ये सारा एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई भी रीडिंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप अपने क्लब के माध्यम से आप कर सकते हो। सो हर महीने आप एक्टिविटीज़ करेंगे, उसका रिपोर्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो उसके लिए एक अलग URL अवेलेबल है। सो उस पर आप अपलोड करेंगे, फिर हम मेरे पास हर महीने का रिपोर्ट आता रहेगा। सो उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू रिगार्डिंग NDLA। अभी टाइम है हमारा क्विज कम फीडबैक फॉर्म का। सो मैं आपके साथ एक चैट विंडो पे क्विज कम फीडबैक फॉर्म का URL शेयर करने वाला हूँ। आप 1 मिनट रुक जाइए।
Am I audible? Is my voice clear? Because there was some network issue. अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक है। Okay, thank you. So अभी हम क्विज कम फीडबैक फॉर्म के बारे में देखेंगे. So I'm going to share the URL for quiz cum feedback form. Just kindly wait for a minute. हेलो 1 मिनट रुक जाइए जी. So अभी मैंने सबके चैट विंडो पे क्विज कम फीडबैक फॉर्म का URL भेजा है. So उस पे दबाइए. तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्विज कम फीडबैक फॉर्म को भरना है. फिर आप कर लीजिए. जल्दी मत हो जाइए. सर कहाँ पर किया है? चैट विंडो में आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आप सेंटर पे दबाएंगे. फिर ऊपर 2-3 आइकॉन्स आएंगे. वहाँ पे राइट कॉर्नर पे एक गोल का आइकॉन रहेगा विथ रेड डॉट. सो उस पर क्लिक करेंगे. वही चैट विंडो है. तो सबसे नीचे जाएंगे. मेरा एक मैसेज आया होगा ऑर्गेनाइजर से. सो वहाँ पे HTTPS करके एक URL मैंने अभी भी डाला है. सो उस पर क्लिक करेंगे. फिर आपका ये वाला खुल जाएगा. फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फीडबैक फॉर्म दिखेगा करके. सर चैट पर ये शो नहीं हो रहा. 2 मिनट रुक जाइए. मैं पहले एक बार तो आप एक बार ये देख लीजिएगा. मैं अभी विंडो को अभी मैं दिखा रहा हूँ फीडबैक फॉर्म कैसे भरना है. सो पहले आपको आपका पूरा नाम भरना है. इस पर आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक और गलती करेंगे फिर आपकी सर्टिफिकेट में भी वैसे ही प्रिंट होके आएगा. क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस है ऑटोमेटेड है. और इसमें आप सपोज आपके नाम गलत लिखेंगे फिर वही आपके पास आएगा. और दूसरा फील्ड आपको भरना है नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन. सपोज आप गोविंद नेशनल कॉलेज नारंगवाल से हैं. फिर आप इसमें चूज कीजिए. सपोज आप अदर इंस्टीट्यूशन से हैं. फिर आप अदर में चूज करके आपका पूरा कॉलेज का नाम और स्कूल और इंस्टीट्यूशन का नाम पूरा लिखना है. ओके. इधर भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेट ऑफ द वेबिनार. वो आज है 12 जून. सो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. उसको सिर्फ दबाइए. आप इधर आ जाके अपना डेट ऑफ बर्थ मत भरिएगा. और डेजिग्नेशन आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिए. आप फैकल्टी है तो असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी हो वहाँ पे लिख दीजिए. और ईमेल आईडी सही ईमेल आईडी लिख दीजिएगा. क्योंकि अदर काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर्टिफिकेट भेजने के बाद कहते हैं मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला. फिर बाद में हम अपने डेटाबेस में चेक करते हैं तो जीमेल को स्पेलिंग गलत लिख देते हैं. जी नेल लिख देते हैं. फिर अपना नाम में कुछ स्पेलिंग गलत लिख देते हैं. फिर उनके पास मेल पे सर्टिफिकेट नहीं जाएगा. सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए. ईमेल आईडी गलत ना भरें और मोबाइल नंबर सही लिखें. फिर हम आपका Sir, which one is already adjusted? सॉरी आई डिडंट गेट यू. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव लॉग इन अकाउंट फॉर NDLA. आपने ऑलरेडी NDLA पे रजिस्टर्ड है. फिर आप इस पे दबाइए. नहीं है तो नो पे दबाइए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेरियस फिल्टर ऑप्शंस अवेलेबल एट NDLA. NDLA में कितने भी फिल्टर ऑप्शंस है. मैंने आपको 11 फिल्टर्स के बारे में बताया. उस पे एटलीस्ट 5 फिल्टर्स का नाम आप इधर लिखना है. सपोज आप भूल गए फिर एक बार आप दोबारा NDLA ऐप खोल के देख सकते हैं कितने फिल्टर ऑप्शन है. ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है. सो आप देख के जवाब दे सकते हैं. कोई पेनल्टी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस लर्निंग रिसोर्स टाइप्स अवेलेबल. सो आपको फिल्टर ऑप्शन में जाके देखना है कितने सारे फिल्टर वेरियस फिल्टर ऑप्शन. एटलीस्ट 5 फिल्टर ऑप्शंस आपको वेरियस रिसोर्स लर्निंग रिसोर्स टाइप आपको लिखना होगा. और मैंने इसके आंसर तो ऑलरेडी बताया. NDLA कंटेंट अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस. और लिस्ट आउट 5 एक्सेस ऑप्शंस अवेलेबल इन NDLA. और हाउ NDLA is different from Google.
हाउ NDLA हेल्प्स टू योर लर्निंग ड्यूरिंग COVID-19 लॉकडाउन सिचुएशन। फिर आपका ओवरऑल फीडबैक अबाउट NDLA, एनी सजेशन फॉर NDLA टू कंसिडर और फीडबैक अबाउट दिस ऑनलाइन वेबिनार। ओके, यही आपको भरना है, जल्दी नहीं है, आपके पास 30 मिनट का टाइम है, अभी 7 बज रहा है, 7:30 तक आपके पास टाइम है। सो 30 मिनट के अंदर आप इसको भर के जमा कर दीजिए। सो सबमिट करने के समय पे आपके पास एक थैंक यू मैसेज आएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वही आपका एविडेंस है आपने फीडबैक फॉर्म सबमिट किया है। क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है। सपोज आप कहते हो मैं सबमिट किया लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं आया, क्योंकि हमारा कितने भी हम डाउनलोड करते हैं उसी के बेसिस पे हम प्रोसेस करते हैं। सपोज हमारे डेटाबेस में नहीं आता, फिर इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको यूज़ कीजिए। और अभी हम इधर 80 लोग हैं, सो यही 80 लोग इसको भरेंगे। सो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास शेयर मत कीजिए, क्योंकि हमारे डेटाबेस में वो भी दिख जाता है किस बंदे ने कितने समय तक लॉगिन करके सिस्टम के अंदर रहा। सो वो भी हम मैच करेंगे। सो अभी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। माइक। सर फॉर्म शो नहीं हो रहा, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि पर नहीं। सो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? यस सर। सर ऊपर एक राउंड आ रहा है, उसके ऊपर रेड डॉट लगा हुआ है, वो चैट वाला है, वहां नीचे बिल्कुल कुछ शो नहीं हो रहा। आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे सबसे नीचे जाइए। सर सबसे नीचे ही गए थे, वहां पर नहीं है। सो अभी कितने लोगों ने खोल के देख रहे हैं इंडियन फीडबैक फॉर्म को? मुझे देख रहे हैं चैट मैसेज पे एक बार डाल दीजिए कितने लोगों को सर, इट इज नॉट अवेलेबल देयर। हरलीन ने कहा है। सो एटलीस्ट सर लास्ट में बाबा जैन और उसके नीचे कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट 20 लोगों ने कहा है इन्होंने खोल के देखा है। नहीं है सर, मैंने भी देख लिया। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। मैं सर एवरीवन में जाए, एवरीवन ऑलरेडी वाले सर। सेक्शन में जाए। एवरीवन पे जाएंगे। आप माइक को म्यूट पे रखिएगा, काफी डिस्टरबेंस है। जसप्रीत कौर जी प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो अभी मैं दोबारा एक बार यूआरएल शेयर कर रहा हूं। सो सबको आप कितने भी लोगों को नहीं मिल रहा है, आप मुझे एक बार चैट मैसेज भेजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कितने लोगों को नहीं मिल रहा है यूआरएल, आप मुझे चैट मैसेज भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सर ऑन नहीं हो रहा है लिंक। क्या एरर दिखा रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है? सो पवन कुमार जी, मनदीप कौर जी, जगमीत सिंह जी, नवप्रीत कौर जी, मैंने सबको यूआरएल चैट विंडो पे भेज दिया है। और लखवीर कौर जी, मनकिरात कौर जी, आप सब अब एक बार अपने चैट विंडो पे खोल के देखिएगा, मैंने आपको चैट मैसेज पे भेज दिया है। काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। अभी भी किसी को नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे आप चैट मैसेज पे डालिएगा, फिर मैं आपको यूआरएल इंडिविजुअली भेज दूंगा। सो ऑलरेडी कुछ लोगों ने सबमिट कर दिया है फीडबैक फॉर्म, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उनका नाम। राम राम। मैं कहा भेज दो बच्चों को ना, देना वो बस खेलने लग पड़े। प्रदीप कौर जी मैंने आपको भेज दिया है। मनीषा जी मैं आपको भेज दिया है, आप अपना चैट विंडो खोल के देखिएगा। नवप्रीत कौर जी मैंने आपको भी भेज दिया है। नई शर्मा जी मैंने आपको भेज दिया है, आप चेक कर लीजिए।
सपोज आपको खोल नहीं रहा है तो फिर आपका इंटरनेट स्लो है, सब आपका इंटरनेट स्लो है तो फिर वो फॉर्म खोलेगा नहीं। सो आप एक थोड़ा सा कोई भी जगह कहीं पे अच्छा इंटरनेट मिलेगा वहाँ पे जाके आप खोल दीजिए। सो अभी मेरे पास 2 फीडबैक फॉर्म्स आ चुके हैं, एक अश्वनी जैन और दूसरा मनप्रीत कौर, इन दोनों ने सबमिट कर दिया, इन दोनों का फीडबैक फॉर्म्स मिल गए। Send me. I'm talking Dr. Amarjeet. Please send me. आप मुझे चैट मैसेज पे मैसेज डालिएगा मैडम, फिर मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। Okay, okay. सो राजीव कुमार शेगल जी, सर मैं चैट मैसेज करता बट मैंने मिल नहीं रहा। दलीप कुमार, फिल्टर नेम कहाँ से देखना है? दलीप कुमार जी, आप मोबाइल ऐप इंडिया लाइक का मोबाइल ऐप जाके आप होम पेज पे राइट कॉर्नर पे आपको सर्च करके फिर राइट कॉर्नर पे एक ऑरेंज कलर आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। डेजिग्नेशन पे आपका क्या आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए, सपोज आप फैकल्टी हैं फैकल्टी लिख दीजिए। डॉक्टर अमरजीत कौर जी ने मैं आपको यूआरएल भेज दिया, आप चेक कर लीजिए। नवप्रीत कौर जी मैं आपकी चैट विंडो पे भेज दिया है। जसप्रीत कौर जी मैं आपको चैट विंडो पे भेज दिया है।